वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोय। हमें अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुण्यो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। कलयुग के अवतार नानक के बोहित, जाहर हजूर हाजरा हजूर जागत जोत, तख्त चवर दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जीओ, आप जी को डंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी के गृहस्थ रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुणे आप जी सरवण कर रहे सो भाई सुखविंदर सिंह जी पासों गुरु नानक पातशाह दे आगमन बारे आपां अज विचार करांगे। जो साहिब सच्चे पातशाह ने धन धन बाबा हनुमान सिंह जी और उन्होंने दे अनेक साथियां दी शहीदी वाले अस्थान गुरुद्वारा सिंह शहीदां विखे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी दे 11वीं जोत ने और जुगो जुग अटल ने, उन्हां अज प्रकाशमान हुंदियां साडे लई जो फरमान बख्शिया, जिसनों आपां मुख वाक कहांगे। साहिबां ने अपने आनंद दे विच जो मुख वाक बख्शिया वो आपां विचारांगे। उस तो पहलों आपां इस गल नूं दृढ़ कर लईए कि साहिब सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, या ये कह लिए जो जोत साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक पातशाह जी ने चलाई, उस दा जो प्रभाव है उस बारे गुरबाणी की कहती है। भट्ट साहबान फरमाउंदे ने, सतयुग तै माणियो चलियो बल बावन पायो, त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्रसैन को राज अपै भगतः जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो। साहिबा ने भट्टां दी बाणी अंकित की और आपां नूं इस चीज बारे भली भांत पता है कि जो भी बाणी है वो अकाल पुरख की बाणी है। सो भट्ट साहबाना की कली ये बाणी आपां सोचे कि भट्टां ने उचारी है, नहीं, ये भी भट्ट साहबाना नूं जे आयद हुई है तां उन्होंने आख्या। इस सवैये दे विच बहुत क्लीयर किया है उन्होंने कि परमात्मा सतयुग दे विच तू 52 अवतार दे रूप दे विच आया है। द्वापर युग जदों आया तू कृष्ण जी दे रूप दे विच आया। द्वापर कृष्ण मुरार असी कई बारी विख्यान व्याख्या करन लग्या
ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਮੁਰਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਆਏ ਨੇ? ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਈਏ ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ, ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਅਟਲ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਟਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੁਣ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਖੋਲ ਲੋ, ਪੜ੍ਹ ਲੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਗੋਹਜ ਗੱਲ ਜੀਏ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭੇਦ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ, ਮਿਲਣਗੇ ਜਵਾਬ। ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜ ਹੁਣ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਨਾਤਨ ਮਤੀ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਨਾਤਨ ਮਤੀ ਹੀ ਸੀਗੇ ਰਾਮ ਜੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਲੀਲਾ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਲਾ ਚਲਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਰਾਮ ਜੀ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨੇ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਲਾਏ। ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
इस स्पष्ट रूप दे विच पहलों ये समझिए कि राम जी का जो सिस्टम सी वो कृष्ण जी वेले वैलिड नहीं सी, और जिहड़ा कृष्ण जी वेले सिस्टम सी वो हुण वैलिड नहीं है। सनातन मत इस वक्त वैलिड नहीं है। ताही गुरु नानक पातशाह जी का आगमन होया ना। परमेश्वर वही है जो राम जी दे विच विचरिया, जो कृष्ण जी दे विच विचरिया, हुण गुरु नानक पातशाह जी दे विच है। गुरु नानक पातशाह जी ने एक अजिही सानू सुगात परमेश्वर के रूप दे विच दित्ती गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो कि उस परमेश्वर का नाम है। और वो कैसी चीज है? वो परमेश्वर तो भी उच्ची चीज है। जपजी साहब पढ़ते हैं ना आप, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। ये जो परमेश्वर का नाम गुरबाणी रूप दे विच, गुरबाणी सरगुण रूप दे विच परमेश्वर है, निर्गुण रूप दे विच उसदा नाम है। वो सानू बख्शिया, और वो नाम की ऐसी करामात है, वो चाहे हुण समा बदले, चाहे स्थान बदले, चाहे समाज बदले, तीन सस्से ने जी जिन्हां दे बदलन दे नाल धर्म बदलता है। धर्म कोई हवा नहीं है। धर्म समाज दे विच एक पर्टिकुलर समय दौरान एक नियत स्थान, समा स्थान ते समाज, उत्थे विचरण दे ढंग नूं धर्म कहा जाता है। जदों ये तिन्नां सस्सियां विचों एक भी बदलदा है, समा स्थान ते समाज, तां धर्म दा बदलना जरूरी है। वतीरे दा बदलना जरूरी है। धर्म मतलब वतीरा, वतीरा मतलब कानून, भी किस तरह विचरना है। इस तो उत्ते धर्म नहीं है। मत किसी मुबालता च पै जाया करो। बहुत वधिया धर्म सीगा सतयुग दा जो सी उस वक्त सी। द्वापर त्रेते दा जो धर्म सी उस वक्त ठीक है, वैलिड सी। कल युग च नहीं। कल युग च हुण जो गुरु ग्रंथ साहिब दसणगे ओहो ही होएगा। हुण आपां कहांगे जी मान लो कल युग खत्म हुंदा है, कल युग दे खत्म होने तो बाद फिर सतयुग या कोई होर युग आउंदा है, तो इसदा मतलब तो यह भी इनवैलिड हो जाएगा? नहीं। इस चीज नूं समझण दी लोड़ है। सवैये दे आखिर दे विच कहा, अब चल राज अटल, हुण ये टलण वाला नहीं। क्यों? साहिब मेरा नीत नवा। ये साहिब दे एक अर्थ नहीं ने। जदों तीनों सस्सियां विचों एक भी सस्सा बदलेगा, उस दे मुताबिक साहिब अपने अर्थ आप बख्श देंगे। सो समय का बाधक नहीं है, स्थान का बाधक नहीं है, समाज का बाधक नहीं है। यह हुण सदैव रहना। यह सिस्टम अमेरिका च भी वैलिड है, हिंदुस्तान च भी वैलिड है, अरेबियन कंट्रीज च भी वैलिड है। थोड़ा जिहा होर खोलने लई आपां उदाहरण मुसलमान मत दी लै लईए। सनातन मत नूं छड्डीए। कई बारी समाज दे विच हो जांदा किते रिटेलीएशन दे विच कोई गल कीती जा रही है। मुसलमान मिडल ईस्ट दा धर्म है, अरेबियन कंट्रीज दा धर्म है। उत्थों शुरू होए मुहम्मद साहब। हुण तुसीं मुसलमानां दा वतीरा वेखो किस तरह दा। उन्हां ने गिट्टियां तो उपर पजामा पहनना है जी। किसी मुसलमान नूं, पक्के मुसलमान नूं वेख लो,
ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨੀਵਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਫੜਫੜਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਰਮ ਰੇਤ ਸਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇਗੀ। ਬੜਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਪਜਾਮਾ? ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੱਟੜਵਾਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕੋ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਉਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਜ਼ੂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਹਥੇਲੀ ਆ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਪੰਜੋ ਸਮੇਤ ਅੰਗੂਠਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਤੱਕ ਧੋ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਜ਼ੂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵੀਰ ਅਣਸੀਤਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਸੀਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਣਸੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੱਸਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵਾਂ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਦੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਥ ਬਦਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ, ਆਪ ਕਥਾ ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੂਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਬਦਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਾਰਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਦਲੇਗਾ। ਸੋ ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਅੜਨ ਦੀ, ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਪੰਥ, ਪੱਥ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 250 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੀਜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ
अमरदास सन। लेकिन जदों गुरगद्दी मिली, चाहे गुरु अंगद पातशाह जी नूं, गुरु अमरदास जी नूं, रामदास जी नूं, जिन्ने गुरु साहबान होए ने, जदों उन्हां नूं गद्दी मिलदी है, वो गुरु अमरदास ना रह के नानक हो गए। ये भी धार लो। तदी कहा जाता महला पहला, महला दूजा, महला तीजा। और जदों भी शब्द संपूर्ण हुंदा है, पिछे नानक लिखिया जाता है, अमरदास नहीं लिखिया लभूगा। तो रामदास लिखिया नहीं लभेगा, अंगद लिखिया लभेगा ही नहीं, क्योंकि ये बाणी परमेश्वर दी है। और परमेश्वर आप उतरिया सी गुरु नानक पातशाह जी दे रूप दे विच। फिर भट्ट साहब फरमाउंदे ने, आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करो। निरंकार परमेश्वर, आकार धार के, रूप धार के, निरंकार है जिसका कोई रूप नहीं है, निरंकार आकार जोत जग मंडल करे। इस जगत दे विच जोत रूप होके आए ने। ठीक है जी। गुरु नानक पातशाह आप परमेश्वर उतरे ने, गुरु अंगद पातशाह जी फिर परमेश्वर होए ने, गुरु अमरदास जी फिर परमेश्वर होए ने, फिर उन्हां नूं बाणी आई है। जिवें ਆਪਾਂ एग्जाम्पल ले लीए, समुंदर तां उत्थे दा उत्थे स्थिर है, नदियां वग के, नहरां वग के समुंदर विच शामिल हुंदियां। जदों तक शामिल नहीं हुंदियां नदियां नहरां, उदों तक वो नदियां नहरां ने। जदों समुंदर दे विच शामिल हो गईयां, नदियां नहरां ना रह के वो समुंदर हो गईयां। इसे तरीके गुरु साहबान जिहड़े 9 पीढ़ियां दे विच विचरे ने, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ। तो ये सारे दे सारे जितने गुरु साहबान जदों जदों उन्होंने गद्दियां मिलदियां गईयां, वो परमेश्वर हुंदे गए। और बाणी उन्होंने आयद हुई परमेश्वर दी, उन परमेश्वर दी बाणी है। सो तीजी देह दे विच जदों परमेश्वर आउंदे ने, विचरदे ने, या ये कह लिए जिहड़ी तीसरी देह गुरु अमरदास पातशाह जी दी सी, जदों वो परमेश्वर बने तां उन्होंने ये शब्द उचारिया, उन्होंने ये शब्द आयद होया जिवें मर्जी की। 665 अंक के उत्ते धनासरी राग दे विच पातशाह फरमाउंदे ने, कहंदे ने कि काचा धन संचय है मूरख गावार। महाराज कहंदे ने मूरख मनुख कच्चा धन जोड़न दे विच लग्या है। देखो मन्निए ना मन्निए, अपने मुंह ते चपेड़ बहुत भैड़ी मारी है पातशाह ने। मूरख कहा सन जेड़े असी माया कत्तर करते फिरदे हैं ना, सवेर तो लैके शाम तक अपनी इवैल्यूएशन जदों करदा ना जी, मैं तो माया इकत्तरता तो बिना होर कोई धंधा ही नहीं। माया इकत्तरता विच ही लग्या होया मनुख। मारे कहंदे कच्चा धन है। मूर्ख क्यों कहे? एक अखर च भेद है जी महाराज दे। मूर्ख इस करके कहा, महाराज साहब श्री गुरु नानक पातशाह जी ने शब्द उचारिया एक, उहदे विच महाराज ने साफ सच कहा, कहंदे नक नथ खसम हथ किरत तक दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच है। तेरे कर्मा मुताबिक जिथे परमेश्वर ने तेरे दाने लिखे हुए ने, उथे तैनू नक दे विच नथ पा के खिच के लै जाना भी चोगे तो। इस करके मूर्ख है भी परमेश्वर ने तो तेनों उत्थे ले ही जाना, भी तू कादे एफर्ट्स लगा रहे हैं।
ਕਾਹਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਤ ਕਥਨੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਤੂੰ ਕੱਚਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਬਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ तेरे वतीरे वास्ते है। वर्तन को दिया सूम कहे धन मेरा, महाराज ने तेनू वर्तन लई दिता है। बस जिन्नी देर तू इत्थे हैगा ये तेरे नाल नहीं जाना, इस करके कच्चा धन है, पक्का नहीं है। अगे की कहंदे ने मन मुख भूले अंध गावार, होर दो चपेड़ा पै गई। कहते मनमुख भुलिया होया तू अन्ना तू गवार है। इस तो बाद होर महाराज की कह ले, मनमुख भुले अंध गवार। चार विश्लेषण लाते साडे मूहरे, सोचिए भी पातशाह दी बाणी कह की रही है। अन्ना गवार है तू, मन मुख है, मन दे पिछे तुरया होया है। पहली लाइन है जी, हले पहली तो कह काचा धन संचय मूर्ख गवार। दो विश्लेषण, मनमुख भूले अंध गवार। 6 वारी लाता जी साडे मूहरे। जे फिर भी ना आपां मन्नीए सुनीए सुधरीए तां की करिए? फिर महाराज की कहंदे ने, कहंदे क्यों मैं कह रहा है वेखिया कह तन सदा दुख होए। महाराज कहंदे जिहड़ा इकट्ठा कर रहे हैं ना ते जहर इकट्ठी कर रहे हैं। वर्तन को दिया सूम कहे तन मेरा, सानू महाराज ने जोड़न दा माया जोड़न दी ताकीद नहीं की। कहंदे तेरे वर्तन वास्ते निर्वाह वास्ते अपना वर्त, जे जोड़ेगा इकट्ठा करेगा संचेगा इसनू तां की है ये जहर बनेगी। विखिया कह धन सदा दुख होए, तेनू हमेशा दुख पहुंचाती रहेगी। मारे कहते ना साथ जाए ना प्राप्त होए, ना तो ये तेरे नाल जानी है जिहड़ी तू इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं ना तेनू मिलनी है। इस जहान च भी नहीं मिलनी जिहड़े तू कोशिश तशद्ददा कर रहे हैं ना भी मैं पता नहीं किन्नी इकट्ठी कर ला माया। ये तो ओनियो मिलनी है जिन्ने कर्मां च दाने लिखे हुए हैं। ये बिख आले पासे जा रहे हैं। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाए, महाराज फरमाते हैं
ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਕਰਤ ਹੈ, ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਕੂਪ ਗੁਬਾਰ ਭਰਿਓ ਹੈ। ਭਰਮ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕੁੱਪ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। परम मोह के कूप गुबार भरियो है, एता गब आकाश ना मावत। हुण दसो तुसी, ये तां बाणी कह रही है, किन्ना ये किन्ना गुबार तेरे च भरिया होया इस चीज का। कहंदे आकाश भी मिल नहीं सकता, आकाश का कोई अंत नहीं है ना जी। कहंदे आकाश भी इस नूं मिल नहीं सकता, बियॉन्ड मेजरमेंट तू इकट्ठा कर लिया, अपने अंदर गुबार भर लिया। एता गब आकाश ना मावत, बिष्टा अष्ट क्रिम उधर परे। हुण भट्ट साहब भी आ विश्लेषण होंदे ने, क्या करिए जी। विष्टा जहर, अष्ट गंदगी, क्रिम कीड़े गंदगी दे, इन्हां नाल कहंदे तेरा उधर भर लिया तू अपना पेट। असी माया रूपी जहर विकार कीड़े गंदगी दे गंदगी भर ली। ये हुण गल्लां ये सारियां समझण वालियां ने। जेड़ा बंदा मायावी है ना जी, तुसी कदे उहदे नेड़े विचर के देखो, ओदियां गल्लां चों अजिही बदबू आएगी, उस दे कोल सहचारता नाम दी चीज नहीं होएगी, उस दी ग्रैबिंग टेंडेंसी होएगी। भट्ट साहब भी कह गए इस गल नूं, दै दिस धाए महाभिख्या को। कहंदे दसां दिशावां दे विच इह महाभिख्या जिहड़ी जहर है ना, जिन्हों आ तीजे पातशाह जी ने भी कहा ना, विख्या कह तां सदा दुख होए। इस जहर नूं इकट्ठी कर लगे लई दसां दिशावां दे विच भजदा। आपां भी कोशिश करदे हां, अंदर झाती मार लीए। 4 दिशावां हुंदियां ने, ईस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ, 4 कोने हो गए, 2 ऊपर नीचे हो गए, 10 दिशावां। महाराज कहंदे 10 दिशावां दे विच एक दिशा भी नहीं छड्डदा, कोई कोना नहीं छड्डदा माया दे नूं इकत्तर करन दे एफर्ट्स दे विच। पर तन छीन अज्ञान, कहंदे करदा की है, पराया धन खून तक जांदा है और खो के वो सोचता है कि मैं कुछ हासिल कर लिया। कहते हासिल की कीता, अज्ञान। जद के की लेना सी, ज्ञान। उल्टा हो गया ना जी टोटली, बिल्कुल उल्टी चीज असी करनी शुरू कर दी माया कारण। सो अगे वधिए महाराज की कहते ने, साचा धन गुरमती पाए। हुण असल चीज ते आ गए कि करना की चाहिए सी। महाराज कहते करना चाहिए सी, सच्चा धन इकट्ठा करना चाहिए सी। हुण ओहदा एड्रैस दसदे ने कि कित्थों मिलेगा सच्चा धन। महाराज कहते सच्चा धन गुरमती पाए, गुरु दी मत दे नाल तैनूं मिलेगा। गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, उतों सच्चा धन इकट्ठा होएगा। और जेड़े असल चीज है धन, जेड़े धन रूप गुण ने, वो तेरे विच शमूलियत जदों करनी शुरू करनगे गुरु दी मत दे मुताबिक, तेरे चों वो जेड़ी विष्टा जहर दी बदबू आउंदी सी, वो खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। साचा धन क्योंकि मिलना शुरू होया, नाम धन मिलना शुरू होया। महाराज अगे की कहंदे ने, काचा धन फुने आवे जाए। हुण जेड़ा कच्चा धन है ना, वो तो बार बार तू तेरे हथों खुसक जाता है, तू लैके इकट्ठा करके आना, तेरे हथों फिर निकल जाता है। मन मुख भूले मरे गवार। फिर कहता है, कहते मनमुख जेड़ा बंदा ये हरकतां करदा है, मरेगा वार। कहते वो गवार मरूगा। हुण इहदा मतलब बाकी जो लोगों ने मरना नहीं जी। इत्थे जेड़ी मौत है ना जी, ये मौत शरीरिक नहीं है, ये
आत्मक मौत की गल की गई है। शरीर की मौत नहीं है, असल मौत आत्मक मौत है। भाव जदों इंसान मरदा जीरो हो जाता है ना, इस तरीके जदों मनमुख बंदा माया पिछे लग्या मरदा है ना, वो भी जीरो हो जाता है। उहदे च गुण कोई नहीं रहिंदा, औगणा की भरे गंठड़ी, ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਗਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵ ਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਵਗੁਣ ਹਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕੰਢੇ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਕੰਢੇ ਲੱਗਦਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, पढ़न लगे आप विचारिया भी कर लिया। पंख जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तै डूबियले। इनू पंकज नहीं पढ़ना जी, पंकज का मतलब कमल होंदा ना। पंख मतलब साडे पैर चिक्कड़ दे विच ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਖ ਜੋ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी। कोई ऐसा बैरागी मिल जाता है, तेरी बांह फड़ के सतगुरु दे नाल मिला दिंदा है। ये भागां दी निशानी है। मारे कहने अजिहे भाग बना अपने, जे तां बन गए तू तेरे मेल हो गया, वाह भली। जे नहीं बने, माया दे विच लिप्त होया, तां घट्टो घट भाग तां बना अपने। गुरुद्वारे आता सही, 2 घड़ी बैठ के सुन पढ़ता सही, कर कोशिश गुरु दी गोदी च बैठण दी। जिदन तू गोदी च बैठ गया, आपे कह देना चल रे बैकुंठ तुझे ले तारू। आपे बांह फड़ेगा दाता। महाराज अगे की कहते ने, साच रते अहनिस बैराग। जदों सतगुर दा भेट होया ना, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰਚ ਜਾਏਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਨ ਅਰ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਬੈਰਾਗੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਰਾਗ, ਬੇਰਾਗ ਕਿਸ ਤੋਂ मतलब ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਾਗ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਸੀਮ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ 2 ਹੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਲੈके चले। 4 युग में अमृत साची बाणी। हुण जिहड़ी बाणी बारे आपां शुरू विचारिया ना जी, अब चल राज अटल आद पुरख फरमायो। भट्ट साहब ने कहा जिन्हों उसे बारे कह रहे हैं महाराज। महाराज कहने 4 युग में अमृत साची बाणी। ये 4 युगां दे विच जिहड़ा अमृत तैनू दे चले ने ना पातशाह, ਇਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
अब चल राज अटल आदि पुरख फरमायो, उसे दी सिमली है। दो जगह महाराज ने प्रमाण देता तो चौ जुग में अमृत साची बाणी, चारे जुगां च है बाणी एहो ही रहन वाली है। हुण मुड़ के परमात्मा का अवतार नहीं होने वाला कोई, क्योंकि अवतार होया होया तुहाडे सामने है। कर लो दर्शन, गल्लां करनी है, खोल के गल्लां कर। अगे महाराज की कहते ने, पूरे भाग हर नाम समाणी। जिहड़ी चौ जुगां दे विच स्थिर रहन वाली बाणी है ना, यह भागां नाल इहदा नाम है, जो बाणी दा नाम रूप दे विच भागां नाल तेरे च समा सकदी है। हर गल भागां ते आके टेकदी है। हुण भाग किवें बनना, भाग बनाउण दे जरिए भी महाराज ने दिते हुए ने सानू। गुरु घर आ, सेवा कर, सिमरन कर, सेवा सिख। गुरुद्वारे दी दहलीज तो बाहर जाके उस सेवा इंप्लीमेंट कर समाज दे विच। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, इत्थे आके सिख किवें सेवा करनी है ते करनी कित्थे? असल सेवा विच दुनिया सेव कमाइए। हुण महाराज ने सेवा करिए नहीं कहा, विच दुनिया सेव कमाइए। कमाई जदों आपां करदे आं, आपां अपने घर कुछ लैके आउंदे ना जी। सो जदों असीं दुनिया दे विच सेवा करांगे तां भागां दी कमाई दी गंठड़ी आपां लैके आवांगे। ये भाग नहीं जी, कर लिए। समा निता प्रति बीती जाता है, हर घड़ी हर सैकंड खत्म होता जाता है। औद घटै दिनस अर रात, अवधि साडी घट रही है, दिन अर रात दे विच घटी जा रही है। मारे कहने फूटे घट जो पानी, फुटे हुए घड़े च जिवें पानी नहीं ना रहिंदा, पानी निकल जाता, उवें साडी जिंदगी खत्म हो रही है। बनाइए भाग, सेवा विच लिप्त होइए, सिखिए, गुरु नूं अरदास करिए सानू सेवा दस किवें करनी है। सानू सेवा नहीं करनी आउंदी, फिर वो कमाई वाली सेवा सानू महाराज दसणगे। इहदी गोदी च बैठना तो बहुत ही जरूरी है। सिद्ध साधक तरसै सब लोई, इस चीज नूं महाराज कहने सिद्ध और साधक भी तरसदे ने। सिद्ध कौन ने? सिद्ध वो ने जी जिन्हां ने अपने आप नूं सोध लिया, सुधार लिया, वो सिद्ध सिद्धि प्राप्त कर ली। साधक जेड़े सिद्धि वल रस्ते वल चले हुए ने, सिद्ध साधक तरस देने इस चीज को। सानू दस रहे ने भी तू जिसनू कुछ समझदा ही नहीं, तू माया वाले पासे लग्या होया है, इनू तां सिद्ध और साधक भी तरसदे ने, कर लै कुछ। महाराज अगे की कहते ने, पूरे भाग प्राप्त होए। फिर महाराज कहते ने ये भागां नाल ही मिलनी है, भाग बनाइए। सेवा राही रस्ता दस्या महाराज ने, आ तैनू मैं दसदा किवें करनी है सेवा, किवें पढ़नी है बाणी। बाणी की कहती है, कोल तां बैठ मेरे, बैठना पएगा। सब किछ साचा साचा है सोए। हुण एक चीज महाराज आपां कहंदे ने ना, अगे सारा कुछ जिस हिसाब नाल महाराज ने बताया एवं लगता है ना भी समाज का सारा मैला ही है। जितों आपां माया इकट्ठी करन लगे हुए हाँ,
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਆ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ जो तुम देख दे ये हर का रूप है, जिन्हें तू जहर समझी बैठा है ये परमेश्वर का ही रूप है। हर रूप नदरी आया, जदों तेरी बिरती बदली ना फिर तेनू नजर आना है ये रूप। ये असल च सारा कुछ हरी का ही रूप है। घट घट में हर जी वसे, हर चीज चो विचरदा है, वसिया होया। सो इस नू हरि दा रूप समझिए, लेकिन धसना नहीं है, इहदे विच लुभाएमान नहीं होना। जैसे जल ते कमल निरालम मुरगाई निसाणे। जिवें महाराज कहंदे ने कमल है वो चिक्कड़ उगदा है, लेकिन चिक्कड़ दा एक भी छिट्टा उस दी पत्तियां दे उत्ते ठहर नहीं करदा। सिख अजिहा होना चाहिए, भावें आले दाले किन्ना ही चिक्कड़ किन्ने ही लुभाए मान माया उहदे अगे पिछे होवे, फिर भी उस तो उपराम रहे, उहदे विच अपने आप नूं खच्चत ना करे। मुरगाई निसाणे, मुरगाई एग्जाम देखो महाराज ने वनस्पति दे विच कैसियां कैसियां चीज़ां साडी उदाहरण वास्ते रखी। मुरगाई ऐसी ऐसा है पंछी है, वो पानी दे विच डोबा लाउंदा है, लेकिन उहदे खंभां दे उत्ते एक भी ड्रॉप नहीं होंदा, सुक्के दे सुक्के खंभ। कैसे कृष्ण ने कमल चिक्कड़ दे विच उहदे पत्तियां दे उत्ते जिन्ना मर्जी चिक्कड़ सिੱਟੀ चलो खा साफ। अजिहा महाराज ने कहा सानू अजिहा होके रहे। ये नहीं कि चिक्कड़ तो दौड़ के तू किथे चले जाएगा, नहीं जा सकता किते। जिवें पुराने जोगी जंगलों वाल चले जाते सीगे, लेकिन वो किसी की तृष्णा तो खत्म ना हुई। ये विच ही रह के विच ही होवे मुक्त, इन्हां चीज़ां दे विच ही रहना है। कमल ने चिक्कड़ दे विच ही खिलना है, लेकिन चिक्कड़ दा प्रभाव कबूल नहीं करना। इस मुरगाई ने पानी दे विच नहर दे विच डुबकियां लाउणियां ने, लेकिन उहदा प्रभाव कबूल नहीं करना। इस तरीके मनुख नूं ताकीद है, माया दा प्रभाव कबूल नहीं करना। माया तेरे निर्भाव वास्ते है, तेरे कोल रहनी है, तेनू महाराज ने देनी है, तो उहदे पिछे भजना नहीं, तो उस तो उपराम रहना है, उसनू वर्त के खत्म बस। वर्तन को दिया सूम कहे तन मेरा इकत्तर नहीं करनी, इनू वर्त ले तेरे वर्तन वास्ते। जे तू सूम वांग कट्ठी करन लग गया, ये जहर बन जानी है, बिख्या बन जानी है। बिख्या कह धन सदा दुख होए, आपां हुणे पढ़ के हटे, वो दुख मिलणगे सानूं, सुख नहीं मिलने। सो अगे महाराज की कहते हैं, उत्तम ब्रह्म पछाणे कोई। ये जिहड़ा हर दा रूप है ना जी, महाराज ने पहलों तुक दे विच आख्या है ना, सब कुछ साचा साचा है सोए। इस दी पछाण है जिहड़ा वो ब्रह्म ज्ञानी करदा है, उस दी ये दृष्टि बनती है। उत्तम ब्रह्म पछाणे कोई। उत्तम ब्रह्म की अवस्था दे जो पहुंचता है, उदों इसकी पहचान होती है। या ये कह लिए, ये जो परमेश्वर उत्तम ब्रह्म है, इसकी पछाण भी कोई हो करता है। वो कोई कौन है? कोई आपे ब्रह्म ज्ञानी है। कोटन में नानक को नारायण जे चीत। एक करोड़ां च कोई एक अद्धा हुंदा है जिहड़ा इत्थे पहुंचदा है। अगे की कहते महाराज, सच साचा सच आप दृढ़ाए। हुण महाराज कहते ने
सच और सच्चा परमात्मा ही है ना जी। वो कौन दृढ़ कराउंदा है? वो आप परमेश्वर ही दृढ़ कराउंदा है। हुण साडे लई की बचिया भी ये तो परमात्मा नहीं कराउणा है, साडे लई सिर्फ इन्ना की काम है कि इहदी गोद च आ जाइए, इहदी शरण च आ जाइए, इहदे हुक्म च आ जाइए, ये जो कहंदा है वो सुनिए, रमालिया नाल ढक के मत्थे टेक के ना मुड़िए। इन्हें बोलिया की है? अरदास की, अरदास करके मुड़ के चले गए, लेकिन जवाब तो लिया नहीं। इन्हें जवाब की दिता है? बस आ करना है, नाम पढ़ना है, बाणी पढ़नी है, बाणी सुननी है, कीर्तन करनी है, लेकिन ये नहीं करना मैं इन्नी बाणी पढ़ता, मैं इन्नी बाणी पढ़नी है ना। ये तो समुंदर है, असी किथे था पा लांगे दा। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गणी ना आवे, भुलिए ना इस चीज। तेरा पलटा एक किणके ने कर देना, बाणी दे एक शब्द, एक अखर ने तेरी तब्दीली कर देनी है। जिस दिन उसकी कृपा होगी, सच साचा, सच आप दृढ़ाए। उस सच्चे दा सच आ उन्हें इस तरीके दे नाल आप दृढ़ा देना है, लेकिन तेनू बाणी पढ़नी पैनी है। पहला प्यार नाल पढ़, जिन्नी पढ़ सकदा है, खच होके नहीं, तशद्दद लाके नहीं, अपने आप नू परेशान करके नहीं, आनंद दे विच प्रेम दे नाल जितना हो सकता है उतना ही। हुण कई प्रेमियों का इन्ना प्रेम हुंदा, उन्होंने उठण नू मन नहीं करता, पढ़ी जांदे ने, बाणी पढ़ी जांदे ने। ये उन्हां दी अवस्था है, तेरी अवस्था नहीं है। नकल नहीं करनी। जिथे तेनू लगदा है तू खच्चत हो रहा है, छड्ड दे, उत्थे सेवा करन लग जा, बहुत कुछ। सच साचा, सच आप दृढ़ाए। जदों इस प्रेम दे नाल तू लगेगा, तू प्रेम पाएगा, उन्हें तेरी बांह फड़नी है, फिर तेनू सच्चे ने सच जो है वो आप दृढ़ाउणा है। तेरे तशद्दद कीतिया नहीं दृढ़ होना भुलिए ना। सेव ना मिलियो, घाल ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। ये जेड़ी अचिंता है ना, ये ओदा गिफ्ट है, ओदा परोपकार है। ये सानू साडे तशद्दुद नाल नहीं मिलनी, ओदी किरपा दे नाल। वो किरपा दे घर चाहिए। असी हुण अपना भांडा सीधा करना है, बस आही करना है। अगे काम होदा है, अगे उन्हें आप कहना है, चल रे बैकुंठ तुझे लेता। अगे उन्हें बांह साडी आप फड़नी है। साडा काम सिर्फ बांह वधाउणा है। नानक आपे वेखे, आपे सच लाए। मारे कहते ने अगला काम ओदा ही है, उन्हें आप वेखना, आपे सच सच दे नाल ला लेना। तेनू कोई लोड़ नहीं है फट करने दी, तू एक कदम पुट बस। गुरसिख एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए। असी उस दे किरपा दे पात्र बनना है। असी उसनू अपने एफर्ट्स दे नाल, अपने हठ दे नाल असी नहीं हासिल कर सकते। असी उन्हें हासिल ही नहीं कर सकते। पहली तो गल यह है, असी वो बन सकते हैं, असी उन्हें हासिल नहीं कर सकते। इस चीज को समझिए आप जरूर। और वो किवें बन सकते हैं? ओदी किरपा दे नाल बनांगे। किरपा दे घर उहदे आइए, उहदी शरण चाहिए। उहदी शरण की है? उहदे हुक्म ने। उहदे चरण की ने? उहदे हुक्म ने। वो मन्निए जो वो कहंदा है, सुनिए मन्निए मन कीता पाओ। खेड बननी शुरू हो जाएगी।
सो ये महाराज दे अज हुक्म सन। समय की समाप्ति है जी। आप जी विच नाम विचरदा खिमा दा जाचका फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।